Bismillahirrahmanirrahim. Sum of annuity due. Sum of annuity due. Chapter number 7, Annuities. Sum of annuity due. In order to find the formula for finding the sum of annuity due, first we consider an example. Let us suppose that a person invests rupees 100 at the start of each year for 5 years at 10% rate of interest compounded annually. Let us suppose that a person invests rupees 100 at the start of each year for 5 years at 10% rate of interest compounded annually. To find the value of annuity due at the end of 5 years, we find compound annuity of each payment separately, then add these amounts and then add these amounts. आप ज़रा ये फिगर समझिएगा, फिर हम डिस्कस करते हैं जी। ये हमारे पास स्टार्ट है, ये पहला साल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा जी। जब स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट होगी तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो पे करेंगे तो इन्वेस्ट फॉर 5 years होगा 10 into 1 plus 0.1 raised to power 5 by 10 in 100 into 1 plus 0.1 and raised to power 5 10% जी। तो बड़ी ज़्यादा देखिएगा, इन्वेस्ट बाय फॉर 5 years क्या होगा 100 into 1 plus 0.1 raised to 5 हल करेंगे, ये आएगा जी। ये जब दूसरे साल जब स्टार्ट होगा तो क्या होगा जी, इन्वेस्ट फॉर 4 years होगा 100 into 1 plus 0.1 raised to 4 हल करेंगे तो ये आएगा जी। वजन फिर देखिएगा, जब दूसरा साल होगा तो इन्वेस्ट फॉर 3 years तो होगा 100 into 1 plus 0.1 raised to power 2। फिर इन्वेस्ट फॉर 2 years तो 100 into 1 plus 0.1 and raised to power 2 हल करेंगे तो ये आएगा। अब जब लास्ट ईयर होगा तो उसका स्टार्ट में इन्वेस्ट फॉर 1 year तो होगा 100 into 1 plus 0.1 raised to power 1 हल करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं जी। 10 रुपीज जी, 10 rupees 100 invest at the start of first year and will be invested for 5 years and becomes 100 into 1.1 and raised by 5। भाई जब रुपीज 100 इन्वेस्ट करेंगे स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर और ये 5 years के लिए होगा और इसकी वैल्यू होगी 100 into 1.1 and raised by 5। द रुपीज 100 नेक्स्ट है 100 इन्वेस्ट एट द एंड ऑफ एट द स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर will be invested for 4 years and becomes 100 into 1.1 raised by 4। The rupees 100 invest at start of third year will be invested for 3 years and becomes 100 into 1.1 raised by 3। The rupees 100 G invested for the at the start of the 4th year and will be invested for 2 years and becomes 100 into 1.1 raised by 2। The rupees 100 invest at the start of 5th year will be invested for 1 year and become 100 into 1.1। Thus the sum of annuity क्या बनेगा, 100 into 1.1 raised by 5 plus 100 into 1.14, 100 into 1.1 power 3 plus 100 into 1.1 raised by 2 plus 100 into 1.1 raised by 100। इसको ज़रा आप पहले ये फिर इस तरह तरतीब चलते हैं। नाउ इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा
एंड वी गेट एस बराबर होगा 671.6. Hence, payment of rupees 100 at the start of each year for 5 years at 10% compound annually becomes 671.6. Similarly, we can derive a formula for finding the sum of annuity due. Suppose, अब ये फार्मूला हमने ड्राइव करना है. Suppose a person invests ₹R at the start of each year for n years at R rate of interest compounded annually. To find the sum of annuity, we find compound amount of each payment separately and then add these. जी तो देखिएगा हमारे पास ये है भाई, ये जब स्टार्ट हुआ था, ये 1 साल के बाद हम यहाँ पहुँचेंगे भाई, अगले साल यहाँ पहुँचेंगे एंड सो ऑन. भाई जब स्टार्टिंग था 0 पे था तो उस वक्त इन्वेस्ट फॉर n शेयर्स तो क्या होगा R इंटू 1 प्लस R की पावर n, कैपिटल R इंटू 1 प्लस R की पावर n. जब यहाँ पे अगले साल पहुँचेंगे तो इन्वेस्ट फॉर n माइनस 1 शेयर्स क्या होगा कैपिटल R इंटू 1 प्लस R की पावर n माइनस 1. और जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो इन्वेस्ट फॉर n माइनस 2 शेयर्स तो क्या होगा कैपिटल R इंटू 1 प्लस R की पावर n माइनस 2. भाई यहाँ पे ये n-2 ये n-1 ये एंटर तो इन्वेस्ट फॉर 2 ईयर्स तो क्या होगा कैपिटल R प्लस 1 प्लस R की पावर 2. फिर आगे जब देखें जब यहाँ पहुँचेंगे इन्वेस्ट फॉर 1 ईयर तो क्या होगा प्लीज कैपिटल R इंटू 1 प्लस R की पावर 1. जी अब इसको हम जरा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जी इन डिटेल. इसको इंग्लिश में लिखते हैं ₹R इन्वेस्ट एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर will be invested for n years and becomes capital R into 1 plus R की power n. Is the rupees capital R invested at the start of second year will invested for n minus 1 years and becomes capital R into 1 plus R की power n minus 1. Rupees capital R invested at the start of third year will be invested for n minus 2 years and becomes capital R into 1 plus R की power n minus 2 and so on. जी इसी तरह ₹R invested at the start of n minus 1 years will be invested for 2 years and becomes capital R into 1 plus R की power 2. इसी तरह ₹R invested at the start of n years will be invested for 1 year and become capital R into 1 plus R की power 1. Therefore, अब देखें इसको हमने इकट्ठा करना है. Sum of all these amounts is the value of annuity due. The sum of all these amount in the value of annuity due. अब जरा देखें कि आपने इसमें annuity due में जितनी भी आपने पेमेंट करनी है स्टार्ट में करनी है जी, जितनी भी पेमेंट्स आपने करनी है स्टार्ट में करनी है जी. जीरा देखेगा ये कैपिटल S बराबर होगा कैपिटल R इंटू 1 प्लस स्मॉल r की पावर n प्लस कैपिटल R इंटू 1 प्लस स्मॉल r की पावर n माइनस 1 अप टू सो ऑन कैपिटल R इंटू 1 प्लस R. भाई आप इसको ज़रा अरेंज करने पहले ये फिर ये यानी कि इसको ऑर्डर वाइज आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया. पहले डिस ऑर्डर में था, अब आपने असेंडिंग ऑर्डर R कॉमन निकाल लिया तो वी गेट 1 प्लस R प्लस 1 प्लस R का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 1 प्लस R की पावर n माइनस 2 अप टू सो ऑन. It is geometric series. It is geometric series and sum can be found by using the formula Sn बराबर a into r की पावर n minus 1 over r minus 1. भाई ये geometric series का फार्मूला Sn बराबर होगा a into r की पावर n minus 1 over r minus 1 जब r की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 1. भाई a से हमारा फर्स्ट टर्म, r से हमारा कॉमन रेशियो, n से हमारा नंबर ऑफ टर्म्स. भाई आपने a की r की और n की वैल्यू लगाई. We get S is equal to capital R. भाई A की जगह पे क्या कैपिटल है, A की जगह पे 1 प्लस R फिर 1 प्लस R की पावर n माइनस 1 ओवर 1 प्लस R माइनस 1. भाई A से मुराद 1 प्लस R से मुराद 1 प्लस R और n से मुराद नंबर ऑफ टर्म्स. भाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी हैव दिस जी. अब आपने इसको सेपरेटली डिवाइड कर दीजिए.
तो इसको आपने क्या किया, सेपरेटली डिवाइड कर दिया जी। तो आप तो देखें कि अगर आप इसको ना भी डिवाइड करें तो आप आर कॉमन ले लें जी, ये कैंसिल हो जाएगा जी। तो भाई इधर देखिएगा फार्मूला जो हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वो आएगा एस बराबर है कैपिटल आर इंटू 1 प्लस आर की पावर n प्लस 1 माइनस 1 ओवर स्मॉल आर एन माइनस आर एन माइनस कैपिटल आर। भाई ये वाला फार्मूला याद रखना है, एस बराबर है कैपिटल आर इंटू 1 प्लस स्मॉल आर की पावर n प्लस 1 माइनस 1 ओवर आर माइनस आर। भाई इस चीज को आप इस तरह भी लिखा जा सकता है, भाई इस चीज को आप क्या लिखें, एस एन प्लस 1 ओवर आर। ठीक है जी, बहरहाल ये आपने याद रखना है जी। ये फार्मूला हमारा एन्युटी ड्यू का फार्मूला होगा जी। क्या होगा जी, भाई ये फार्मूला किसका होगा जी, सम ऑफ एन्युटी ड्यू का जो फार्मूला हमारे पास होगा वो ये वाला होगा जी। एस बराबर है कैपिटल आर इंटू 1 प्लस स्मॉल आर की पावर n प्लस 1 माइनस 1 ओवर स्मॉल आर माइनस आर।